ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਨਾ ਨਾ, जितनी ताकत ज्यादा होए उतना ही जबान पे आ जाता है ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है, ताकत है, उस हिसाब नाल ही वो ना करता है। ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे काम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हाँ कहना ही भुल गए। हाँ कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होता है। जायज गल भी नौकर ने कह दी है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालिक कहता है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए ना। अहंकारी ना करता है, सबनों ना करता है, और जिथे तक इसकी सतह है उथे तक ना करता है, और जितना ना ना करी जाता है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसके दुश्मन ही बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बानिशाम के कामे दिल बबारारद, निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों अज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सबनों अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया। आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है। अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है। जीवन धन हो जाता है। कहंदे मित्रां विच जीवना, स्वर्ग दे जीवना है, दुश्मनां दे जीना नरक दे जीवना है। नरक ही भोग रहे ने हो जो कहंदे गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चवो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया है, दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको मीत हम आपन की ना। पर ये युगत
ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੇ ਅਸਥੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂक्ष्म ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਟਿਆ ਬਣਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਯੋਗੀ, ਇਹ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਜ਼, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਧੂ और ये मित्र साधु जो आया है, रमजी मनुख, हरक सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे दे अंदर दाखिल होंदे ने, सारियां दी निगाहां उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है। कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਏ। ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਔਰ घर वालियां ने सुभाविक पूछया उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलकदी है, निर्माणता बिखरदी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है। तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने। पुछदे ने, संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने? दुखत होके कहंदा है, मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन दे दोस्त ने, साधु ने, साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर, जब उस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे। कोई इस तरह तारुफ कराई दे? खैर, माफी मंगण लग पिया। कहने लगा, नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ। दूसरे घर गए, दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते। अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वालियां ने भी यही पूछा, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने। रह गई इस चोले की गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे विच ही वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर, उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिए सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसी साधु ਨੂੰ देख रहे हैं। सुभाविक पूछ लिया, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये किहड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने। पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करनी।
ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता। आखिया 3 दफा तू नंगा कीता है, ऐ ले अपना चोला, और 4थी दफा मैं आप ही उतार देना। 3 दफा तू उतरवाया है, 3 दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सन्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र ਨੂੰ छुपाएगा। मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाण की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे अपना ते नर बुरियारी। ये बड़े बुरे पुरुष आते ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते ने। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने अगर गुणवान है। मां बाप नु पिछे सुटते ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी का लक्ष्य है। और यतन कोशिश यह भी आती है, रब नू भी पिछे सुटीए, परमात्मा नू भी पिछे सुटीए। और नाकिश ने पिछे सुटन की कोशिश की सी। नमरूद ने कह दिता सी, कौन होंदा है खुदा? मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसी नू भी नहीं मन सकता। अहंकार जींद है मैं आश्रित, तू तो बिल्कुल भूल जाता है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नज़म लिखी है, बकरे दे बोल नू अगे करके। तो बकरे का बोल है मैं। इसे नू आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। फखर बकरे ने किया बस मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं बस जहां में दूसरा कोई नहीं। जब न मैंने तर्क की बेमाया बेअसबाब ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वड दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। आंद्रा रह गई, सुट दित्तियां गई, बाकी तो सब कुछ कम आ गया। खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईयां, कम दिच वरतियां, केवल आंद्रा बच गईयां। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंजदे ने धुनकी दे नाल, और धुनकी दी जिहड़ी तंद लाई जाती है वो बकरे दी आंत होंदी है, अंदर होंदी है। ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। ये आंद्रा ही रह गई, रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए।
ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। ज़र्ब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत दे उत्ते, उस आंत दे उत्ते नदाफ जोर दा सोटा मारदा है, बस उस नाल ही रूई पिंजी जाती है। ज़र्ब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। हुण उस आंत दे चो सोटे दी ज़रब नाल निकल रहा है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। कोई इतनी कुर्बानी करे, साधना करे ते साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नूं खाक ते अपने मस्तक नूं रगड़े। श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तू दे च बदलदी है। जीवन धन धन हो जाता है, महान हो जाता है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा, निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। वो तो प्रसन्न होता है अपनी उपमा सुन के। उपमा होने लग पई है दूजियां दी, तीसरे दी, मित्र दी। तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है? गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करता है जो किसी गल दे उस नालों अगे होवे। गुण दे च, कला दे च, ज्ञान दे च, शील संजम दे च, या फिर प्रभु की बंदगी दे च, या संसारी तल ते ले लो सता दे च, धन दे च, स्वप्न दे च, किसी भी पक्ष तो जो अगे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटियाण की कोशिश करता है, घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्होंने तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्होंने सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारे कढ़े ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहती है, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिठ होंदी है। जो गुणा दी सिफतो सलाह करता है वो तो परमात्मा दी सिफतो सलाह करता है। गुण किसी मनुख दे च भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है, पर वो तो निंदा करता है, गुणा दी निंदा करता है, क्योंकि अहंकारी है। तो परमात्मा दी पिठ हो जाती उसकी तरफ। और जिस मनुख की तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है, सब दी पिठ हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज फरमान करते हैं, आवंत
ਜਾਵੰਤ ਥਕੰਤ ਜੀਆ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਬਹੁ ਭੋਗਣੇ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਭ੍ਰਮ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਰਮਣੰ, ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਣੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਉਦਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਉਦਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤਨਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਦੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਰਾਧਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ। ਹੈ वेद, है हकीम। कौन? परमात्मा। केड़ी दवाई है उसदे कोल? बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बाहरों नहीं लानी, किधरों बाहरों नहीं लभनी। ये दवाई भी अंदर पई है, इस तरह जैसे कि अहंकार रोग अंदर पे है। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है। अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहा है। हुण जे किधरे अंदरों निकले तू तू तू, ये तो औषधि हो गई। मैं ये तो रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा। मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है, तू है, तू है, कुछ भी नहीं मेरा। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है। जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है। तो उस औषधि का सेवन कर